So, what can you see on the screen? Electrolysis of water. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Just before few seconds, Neha has asked question, how is NO2 formed? So NO2 is formed by thermal Yes, sir. decomposition of any nitrate like lead nitrate. When any nitrate is heated, it produces nitrogen dioxide gas. For example, when lead nitrate is heated, it produces nitrogen dioxide gas. Similarly, when nitric acid is heated, produces nitrogen dioxide gas. Any substance which contains nitrate ion, when heated, produces nitrogen dioxide gas. Electrolytic decomposition reaction that we studied in the previous class. That when water molecules are undergoing electrolysis, that means when they are broken down into hydrogen and oxygen in presence of electricity, then hydrogen gas and oxygen gas are released in the ratio of 2:1 by volume. Now, second type of decomposition reaction, third type of decomposition reaction is photolytic decomposition reaction or photochemical decomposition reactions. In one word, it is called as photolysis. Photo means light, lysis means breaking. So breaking of a substance in presence of light is known as photolysis. And the chemical reactions that takes place when in presence of sunlight some substance is broken down into two or more products are known as photochemical decomposition reactions. For example, when silver bromide is exposed to sunlight, what is produced? Silver metal plus bromine gas is formed. So the chemical equation is 2AgBr in presence of sunlight gives 2Ag solid plus Br2 gas. The color of silver bromide crystals is white. When you see crystals of silver bromide in chemistry lab, it is white salt, just like common salt. But when it is heated or when it is exposed to sunlight, it breaks into silver metal, which has silver color, and bromine gas is liberated, which is red-brown in color. Such reactions are called photolytic reactions. Okay? Photolysis of water takes place inside chlorophyll during the process of Photosynthesis. 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 What is the reaction that takes place during photolysis of water? You have studied in biology. I was attending that class. Ma'am was teaching photolysis of water. What is photolysis of water? Can you tell the reaction? Breaking of oxygen and hydrogen. I'm asking reaction, not definition. What is chemical equation for photolysis of water? Can anyone tell me? H2O, H2O broken to H2 plus O. Hmm? By the action of sunlight. Sunlight. हाँ. Okay. Sir, H2O breaks into H ions and OH negative ions and electrons. I don't think this is correct reaction. मैम ने तो यही बताया था. तो फिर ऑक्सीजन गैस कैसे लिबरेट होती है फोटोलाइसिस में? O और O मिलके O2 बन जाती है, वो escape out हो जाती है. तो ओ कहाँ से आएगा? सर H2O broken to H2 plus O और उसमें एक O और दूसरा O मिल जाएगा, O2 हो जाएगा और वो प्लांट से escape out हो जाएगा. H2 plus O में ब्रेक होता है वाटर. Do water split into H2 and O? Do oxygen atom O exist in nature? No. Oxygen is a No. diatomic gas. No, It sir. always exists in the form of O2, not O. So now tell me reaction for photolysis of water. 2H2 and O2. 2H2 plus 2H2 gives O2 is rise to equals to O2. 2H2O. सर बट मैम ने 2H2 नहीं बताया. carbon dioxide.
बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। सर 2H2O प्लस नहीं 2H2 प्लस O2 gives to 2H2O H2O. H2O gives out 2H2 plus O2. 2H2O breaks 2H2O into gives 2H2 plus O2. All right. So all these reactions are wrong. Final comment from my side. You can write the book में chemical लिखा equation है। for photolysis of water. If you want to write chemical equation, you can write 4 moles of H2O, that is 4H2O, in presence of sunlight gives 4H plus 4OH negative. Are you writing? 4H2O in presence of sunlight gives 4H plus 4OH negative. Because whenever water splits, it splits into H plus ion and OH negative ion. So when 4 water molecules splits, they form 4 H plus ion plus 4 OH negative ion. Clear? Then second part of reaction. Yes, Part sir. of reaction you may write. सर मैंने बस 4 नहीं लगाया था। मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन बैलेंस स्टेट। वो बायो में आप बायो पढ़ रहे थे, वहां चल जाएगा, केमिस्ट्री में नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री की बात करो, क्योंकि बायो में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहां पे आप केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। वहां बायोलॉजी के हिसाब से थोड़ा बहुत गलत सलत बताने से भी काम चल जाएगा। लेकिन when the same equation is asked in chemistry, all the principles of chemistry must be applied. That means whatever chemical equation you are writing, your chemical equation must be balanced, must be correct. Clear? So write down the equation. 4H2O in presence of sunlight breaks into 4H plus ion plus 4OH negative ion. Now what happens to 4OH negative ion? ध्यान से सुनना। अब इसके नीचे सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसी रिएक्शन की सेकेंड रिएक्शन, सब रिएक्शन। 4OH negative give rise to 2H2O plus O2 plus 4 electrons. So 4OH negative मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और लूज करने के बाद क्या बनेगा? 2H2O plus O2. All right. What will be third reaction? मतलब second sub reaction. Second sub reaction will be 4H plus 4 electrons lost by 4OH negative ion. जो 4OH negative ion ने 4 electrons lose किए थे, they will be gained by 4H plus 4H plus give rise to 4H plus 4 electrons give rise to 2H2. So 2 hydrogen gas is released, 2 moles of hydrogen gas is released, 1 mole of oxygen is released, and 2 moles of water is produced. So आपके रिएक्टेंट में भी कितने थे? 4H2O. सर वो लास्ट वाला वापस रिपीट करिए ना, थर्ड वाला पार्ट। 4H plus 4 electrons. 4E negative means 4 electrons give rise to 2H2 gas. Clear? So अब देखिए, आप प्रोडक्ट साइड में आपके कितने हैं? 2H2O बन रहे हैं, जबकि रिएक्टेंट्स में कितने थे? 4H2O. तो 4 में से 2 माइनस कर दिया, मतलब आप इसको फर्दर रिएक्शन को तोड़ सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? 2H2O लेके 2H2O in presence of sunlight give rise to H2 plus half O2. ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप इसको 2 से सबको डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगी रिएक्शन? 2H2O in presence of sunlight give rise to 2H2 plus half O2. Means half a molecule of oxygen can exist, but 1 atom of oxygen cannot exist. Understood?
हैव यू अंडरस्टूड? सर वो हाफ कैसे एग्जिस्ट हो रहा है? वो तो डिवाइड होके वही बचेगा ना फिर। थियोरेटिकली हाफ मॉलिक्यूल कैनॉट एग्जिस्ट, इसीलिए तो पहले वाली रिएक्शन जो बताया था 4H2O के टर्म्स में, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन बुक्स वाले क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके हाफ O2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब आप उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय 2, तब आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। 4H2O गिव राइज टू 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। ठीक है, ठीक है सर। एक्चुअल करेक्ट इक्वेशन 4H2O के टर्म्स वाली है। अब उसको फर्दर 2 से डिवाइड करके उन्होंने क्या किया, कॉमन निकाल के कर दिया। वो बुक्स में देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन वो करेक्ट इक्वेशन नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? Yes, sir. सर Yes, आपने sir. क्या बोला? 4H2O gives 4H2 plus O2. 4H2O in presence of sunlight gives 2H2 plus O2। सर बुक में 7 पेज नंबर पे तो ये लिखा है 2H2 plus O2 gives to 2H2O। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हियर वी आर डीलिंग विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। सृष्टि, यस सर। सर लेकिन इधर तो 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में तो 2 ऑक्सीजन है। 2H2O भी तो बने हैं साथ में, 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। देखो, एक आपकी मेन रिएक्शन क्या है, 4H2O गिव राइज टू 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2, ये मेन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन किन स्टेप्स में होती है, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है 4OH निगेटिव गिव राइज टू 2H2O प्लस O2। सेकंड स्टेप क्या है, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2H2। ये 2 इसके स्टेप्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। देयर आर मेनी रिएक्शंस व्हिच नीड 2 और मोर स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये जो वाटर वाली रिएक्शन थी फोटोलाइसिस की, दैट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फिर हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, दोनों स्टेप को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं, दैट बिकम्स 4H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अच्छा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, इसका यूज कहाँ करते हैं? वेयर दिस रिएक्शन इज यूज्ड? White photo. सर Black and white photography. यस, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में नहीं होता, दिव्यांशी, आंसर गलत है। सर किसी भी सिल्वर का प्रोडक्शन के लिए, ग्लास बनाने के लिए कर सकते हैं। नहीं, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हॉर्न सिल्वर से होता है, AgCl से होता है, और वो पूरा एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जिकल प्रोसेस से होता है, इससे नहीं होता। तो इसमें भी तो निकल ही रहा है ना। लेकिन वो इम्प्योर सिल्वर हो सकता है, दैट इज, ये नहीं है जरूरी कि वो प्योर सिल्वर होगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन स्टिल फोटोग्राफी। फोटोग्राफीज ऑफ 2 टाइप्स, स्टिल फोटोग्राफी एंड डिजिटल फोटोग्राफी। ठीक है, अभी जो नाउअडेज चल रही है कंट्री में अपने, वो कौन सी है? डिजिटल फोटोग्राफी, जिसमें किसी रील की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आज से कई सालों पहले स्टिल फोटोग्राफी चलती थी। स्टिल फोटोग्राफी में क्या होता था, एक रील आती थी कोडैक की और अलग अलग कंपनियों की, वो किस कलर की, ब्लैक कलर की एक नेगेटिव आती थी, रील आती थी, आपने देखा होगा। ठीक है, Yes, sir. वो जो रील होती थी, उस रील में सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी ऊपर, एक प्लास्टिक की शीट थी और उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी। जैसे हम फ्लैश चालू करके फोटो खींचते हैं, फ्लैश की लाइट कहाँ गई? ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके आके उस रील पे पड़ती थी। जहां पे वो रील पे आके पड़ी लाइट, जिस एरिया में पड़ी, जितनी इंटेंसिटी के साथ पड़ी, उतना सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता था। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जैसे डिकम्पोज हुआ, जिस जिस शेप में डिकम्पोज हुआ, जिस इंटेंसिटी से डिकम्पोज हुआ,
उसी इंटेंसिटी उसी शेप का पिक्चर उसमें एंट्रैप्ड हो जाती थी। फिर उसको लैब में ले जाते थे, फोटोग्राफी लैब में, वो उसको वॉश करते थे केमिकल से, और उसके बाद एक रील जनरेट होती जिसको हम बोलते थे नेगेटिव, जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखता था, राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखता था। ठीक है, फिर उसी नेगेटिव को इन्वर्ट करके पॉजिटिव फोटो बनाई जाती थी। सो दिस केमिकल सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन स्टिल फोटोग्राफी। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कलर फोटोग्राफी एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपकी बुक में ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है, मैंने बोला गलत क्यों? क्योंकि कलर फोटोग्राफी, जो कलर फोटोग्राफ पिक्चर्स बनने लगी थी, उसमें भी यही यूज होता था। बस इसका फंक्शन क्या है कि सिल्वर ब्रोमाइड की जो कोटिंग है रील के ऊपर, जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता था। डिकम्पोजिशन से जिस शेप में डिकम्पोजिशन हुआ मॉलिक्यूल्स का, उसी शेप की पिक्चर उसमें एंट्रैप हो जाती है। Am I clear? Use of this reaction, silver bromide. Yes, sir. Yes. Okay, wonderful, great. So next reaction is displacement reaction. ठीक है, so what is displacement reaction? These are the chemical reactions in which a more reactive metal or non-metal displaces a less reactive metal or non-metal present in aqueous solution of its salt. ठीक है, so whenever a metal or non-metal displaces a less reactive metal or non-metal from the aqueous solution of its salt, then the reaction is known as displacement reaction. ठीक है, it is just similar to substitution reactions और substitution period जो आपके क्लास में लग जाते हैं। कैसे होता है वो? मान लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपसे कोई अर्जेंट बात सर को करनी है, प्रिंसिपल सर को, तो वो आ गए एकदम से क्लास में और उसके बाद बोलते हैं सर आप बाहर जाइए, मुझे बच्चों से बात करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट केम इनटू द क्लास एज कंपेयर टू मी। ठीक है, वहां पे मैं लेस रिएक्टिव हो गया, प्रिंसिपल सर मोर रिएक्टिव हो गए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन केम टू द क्लास, ही डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इज इट क्लियर? द सेम इज सर तो ये डिस्प्ले रिएक्शन वाला कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम, ये सिर्फ वो जो टेबल आती है उसको याद करना पड़ेगा, कोई और ट्रिक नहीं होती? आ रहा हूं मैं, वहां पे आ रहा हूं, डोंट वरी। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शायद, या नहीं? तो अभी बताऊंगा आपको। अभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन समझ लीजिए, समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आयरन, ठीक है, आयरन इज अ मेटल। व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ कॉपर, व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर, then iron, which is more reactive metal, can displace less reactive metal from aqueous solution of copper sulfate. तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसने लेस रिएक्टिव कॉपर को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। एज ए रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म? आयरन कंबाइंस विद एनायन एंड फॉर्म फेरस सल्फेट, whereas copper is precipitated in the form of solid. So such reactions in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from the aqueous solution of any salt of less reactive metal is known as displacement reactions. What is the color change? आयरन का कलर कैसा होता है? ग्रे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज पेल ग्रीन। पेल ग्रीन मीन्स वेरी वेरी लाइट ग्रीन, प्लस कॉपर पाउडर, तो कॉपर का कलर रेड ब्राउन। ये कलर्स आपको ध्यान रखना है, याद करना है कलर्स, बिकॉज आपके क्वेश्चंस कलर्स पे ही बेस्ड होंगे। अ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद ए ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस वाई, प्रोड्यूसेस ए ग्रीन कलर सब्सटेंस जेड, एंड a solid precipitate of red brown color, say M. Identify X, Y, Z and M and write the balanced chemical equation for the reaction taking place. This type of questions will come based upon the color of the reactants and products. Now, in this reaction, iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे Fe plus CuSO4
गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu लिख देता, क्या ये रिएक्शन सही होती? सपोज ध्यान से सुना, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu, इज द रिएक्शन करेक्ट और रॉन्ग? बोलो। सर आपने वही तो बोला। मैं वही हाँ सर, जो आपने लिखा वही Right आपने है। रिपीट किया। अच्छा, जो लिखा मैंने Correct वही है। बोला। इज द रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू यू द रिएक्शन इज करेक्ट? बट सर आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन ग्रे है, ग्रीन है, अच्छा और ठीक है। कौन सॉलिड है और क्या है। हाँ, तो इसका मतलब जो मैंने बोला था वो रिएक्शन गलत है। हम्म। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है उसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने नहीं बोला। इफ इट इज सॉलिड कॉपर सल्फेट, नो डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस। आप कॉपर ओके सल्फेट का सर। क्रिस्टल ले लो, उसमें आयरन नेल्स डाल दो, क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। नो। नहीं। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टेक प्लेस, द सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट. If it is not present in aqueous state, the reaction will not take place. Okay, Got my sir. point? Yes sir. Yes, sir. All right. So Yes, here sir. is an activity, a practical. उसको हम बाद में डिटेल देखेंगे, आपके कोर्स में है। ये प्रैक्टिकल की मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। We have taken 2 test tubes. In first test tube, I have taken copper sulfate solution, which is blue in color. ठीक है? And after some time, I added few iron nails into it. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें दिया था कॉपर सल्फेट, उसमें आयरन नेल डाल दिया, एंड देन वी शुक इट विगरसली। इसको खूब तेज से शेक किया और थोड़ी देर के लिए रख दिया। व्हाट केमिकल चेंज विल टेक प्लेस? व्हाट ऑब्जर्वेशंस विल यू फाइंड? Change in color. द आयरन नेल विल बिकम रेडिश ब्राउन। जो आयरन नेल का कलर ग्रे था, दैट विल टर्न रेडिश ब्राउन, एंड द सॉल्यूशन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विल बिकम पेल ग्रीन। ठीक है, तो आयरन नेल बिकेम रेडिश ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर इट। जो भी यहाँ पे कॉपर के प्रेसिपिटेट्स बने थे वो धीरे धीरे क्या हुए, आयरन नेल्स के ऊपर चिपकते चले गए और आयरन नेल कैसी हो गई, रेडिश ब्राउन। और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कैसा हो गया, जो कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया उसका कलर हो गया पेल ग्रीन। अगर इसी आयरन नेल को आप 1 2 3 4 5 6 दिन के लिए रख देंगे तो आयरन नेल स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गेट डिसॉल्व, और डिसॉल्व होने के बाद जो कलर होगा फेरस सल्फेट का वो थोड़ा और ग्रीन हो जाएगा, एंड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विल बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम इंस्टेड ऑफ आयरन नेल. Iron nail will get disappeared, it will get dissolved, whereas copper precipitate will be settled down if long period of time is given. और immediately effect देखना है तो iron nail will become reddish brown. Clear? यस सर। Yes, sir. All right. So which metal will displace which metal from aqueous salt solution? That depends upon the reactivity of the metal. When different metals are arranged in a vertical column in decreasing order of their chemical reactivity. ध्यान से सुनना, when different metals are arranged in a vertical column in decreasing order of their chemical reactivity, then the series of metals so obtained is known as reactivity series of metals. So here we have reactivity or activity series of metals. A series of metal in which metals are arranged in a vertical column in decreasing order of their chemical reactivity is known as reactivity series of metals. In this series, the topmost metal is most reactive metal, whereas the bottommost metal is the least reactive metal. बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें सारे मेटल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, कुछ कॉमन मेटल्स ही लिए गए हैं एज पर एनसीईआरटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सारे मेटल्स अभी मैंने भी नहीं लिए हैं क्योंकि फिर आपको याद करने में दिक्कत आएगी, आपको सीरीज याद नहीं होगी। सिर्फ उतने ही मेटल इंक्लूड किए गए हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकें। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज मेटल्स। टॉप में क्या है, पोटेशियम, सिंबल के।
sodium symbol Na, calcium Ca, magnesium Mg, aluminium Al, zinc Zn, chromium Cr, iron Fe, tin Sn, lead Pb, hydrogen H, copper Cu, mercury Hg, silver Ag and gold Au. How to remember this series? ये इधर लिखा हुआ है. Please stop calling me always zebra careless. Instead, try learning how copper makes silver gold. ठीक है. So इसमें जो रेड से देखिए नेम लिखे हैं, रेड वाला जो लेटर है उसी से आप इसको याद कर सकते हैं. पोटेशियम, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, C फॉर chromium, I for iron, T for tin, L for lead, H for hydrogen, C for again copper, M mercury, S silver, G gold. So how can you remember? What is the remembering memory tricks? Please stop calling me always zebra careless. Instead, try learning how copper makes silver gold. Copper silver को gold कैसे बनाता है? So can you learn it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आसानी से याद हो जाएगी ये सीरीज. Yes, बस sir. आपको Yes, ये sir. स्टेटमेंट याद करना है बस. ठीक है. Out of all these metals which is present at the top is potassium, most reactive metal. जबकि potassium is not most reactive metal. Which is most reactive metal? Francium. Excellent. Wonderful. Francium. किसने दिया? किसने आंसर दिया? Shubham. Wonderful. Great Shubham. Kudos for Shubham. So सर कैसे पता चलेगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूं मैं बेटा. हाँ. एक ही ग्रुप में जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल में. और वो मेटल सबसे ज्यादा मेटलिक एलिमेंट्स कहाँ है? फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स में सबसे नीचे वाला कौन सा है? फ्रेंशियम. नॉन मेटल्स में सबसे रिएक्टिव कौन होता है? जो 70 ग्रुप में सबसे ऊपर है. Chlorine. ये याद हो जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज. बहुत अच्छी ट्रिक दी हुई है सर आपको. हाइड्रोजन ग्रीन से क्यों लिखा है? इसलिए लिखा कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम अभी स्टडी करेंगे. सो ऑल दोज मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स. ऐसे सभी मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन और विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस from water as well as from acids. And those metals which are present below hydrogen in the reactivity series cannot displace hydrogen gas from water and acids. इसलिए water को हमने अलग से कलर दिया है. ठीक है. And the least reactive metal is gold. Actually gold do not react. Since gold do not react in atmospheric conditions, it is known as noble metal. जैसे नोबल गैसेस होती हैं वैसे ही नोबल मेटल. गोल्ड जल्दी से किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता. देयर इज ओनली वन. हमने 7 में प्लैटिनम पढ़ा था, वो क्या है? प्लैटिनम और गोल्ड. प्लैटिनम भी नोबल मेटल है. इट आल्सो डू नॉट रिएक्ट. सर गोल्ड से नीचे आएगा कि ऊपर आएगा ये सीरीज में? एक सेकंड. वो गोल्ड के नीचे आएगा. ठीक है. ठीक है सर. सर ये मेटल सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों लिया है? क्योंकि हाइड्रोजन भी मेटल है. है क्या? हाइड्रोजन इज बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. It behaves both as alkali metals as well as like halogens. Therefore, its position is not fixed in modern periodic table. Why hydrogen is metal? Because it has one valence electron. What are metals? Elements which have 1, 2 or 3 electrons in the valence shell and have tendency to lose these electrons are called metals. Hydrogen also have 1 electron in the valence shell. It can lose this valence electron, so it behaves as metal. Hydrogen is non-metal also because it can gain 1 electron and form H negative ion, just like halogens. So hydrogen can lose electron
hydrogen can gain electron as well. So hydrogen works as or behaves as both metal as well as non-metal, but it is not metalloid. ठीक है? सर Metalloid, सर yes. सर इसको हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल स्टेट में कहाँ देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, छू सकते हैं? किसको? हाइड्रोजन को कहाँ देख सकते हैं? यस सर, सॉलिड स्टेट में मेटल्स की। इसे किसने बोल दिया कि मेटल सॉलिड होते हैं? सर मतलब छोड़ो, मैंने तो कभी नहीं बोला कि ऑल मेटल्स आर मेटल्स, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। मरकरी मरकरी लिक्विड। मरकरी लिक्विड है तो क्या वो मेटल नहीं है? तो यस सर, mercury is also metal, though it exists as liquid. यस Similarly, hydrogen behaves also as metal, though it exists in gaseous state. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेटल्स को सॉलिड ही होना चाहिए। एकलव्य, यस सर आ गया। आ गया? तुम लोग को याद सर दिलाना हमने पड़ता है। जो 9 नहीं सर, 8th में पढ़ा था कि क्लास मेटल्स 8th में पढ़ा था। लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, हाँ, वो सब तो और सॉलिड में ही है एक्सेप्शंस में पता लिखा ना। था, फिर एक्सेप्शंस हमने में नाम लिखा मर्करी और एक्सेप्शन भी तो लिखा था। क्या हाँ। 8th में मैंने पढ़ाया था आपको? नहीं सर, अब साइंस गलत, बुक में तो गलत नहीं लिखा होगा ना। एनसीईआरटी की क्यों नहीं बुक लिखा होगा बुक में गलत? वाह सर, ये सर सुनना लेकिन होता सर था। तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए सीबीएसई को, क्यों कंप्लेंट करना चाहिए? क्योंकि सर क्योंकि गलत गलत है। है। क्योंकि गलत है। गलत कुछ भी नहीं होता, इस दुनिया में कुछ भी अभी सर गलत 5 नहीं मिनट होता। पहले आप ही ने बोला गलत है। तो एवरीथिंग फिर डिपेंड्स, एक सेकंड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस। फॉर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 अप टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 standard, it's general science, and general science everything is correct, but from 9th onwards when you go inside specific subjects like physics, chemistry and biology, then the depth increases, and whenever depth increases, all the wrong concepts that you have studied in previous classes, because actual concepts you could not understand at that time, जो क्लियर चीज होती है वो आप उस कंडीशन में उस एज ग्रुप में आप नहीं समझ सकते, इसलिए थोड़ा बहुत आपको उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए जनरलाइज करके छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से बहुत से जो आपके प्रीवियस नॉलेज हैं वो गलत होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आप क्लास 8 तक के बच्चों के लिए वो सही है, क्योंकि जो रियल सिचुएशन, अब उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है समझ में नहीं आएगा, एलिमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है, वो सब उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवरी हुई, नथिंग। सो वहां तक के स्टैंडर्ड के लिए वो सब चीजें सही है, लेकिन हर अभी जो आप 9th-10th में पढ़ रहे हो, मैं 11th-12th में आप आओगे इसको भी गलत कर दूंगा सब। ठीक है, बहुत सी चीजें गलत हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, वो चिल्ड्रन के बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से सब सही है। ठीक है ओके दृष्टि, सर। यस सर। वो तो क्लास में देवेश सर ने बोला भी होगा आपको, बेटा अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो सही है, मैं जो पढ़ा हाँ रहा हूँ बोला अभी था। सही है। हाँ, ऐसा सेम बोला था। सर बोला बोलेंगे ना वो तो उनको पता है ना कि आगे चल के सब गलत प्रूफ हो जाता है। सर बोला था कौन कि है? आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या यूज है ये समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, metals present above hydrogen in reactivity series can displace hydrogen gas when they react with acids। ठीक है, ये जितने भी ऊपर मेटल्स हैं हाइड्रोजन के, अगर आप इनको एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 इनके साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, सिमिलरली द मेटल्स प्रेजेंट below hydrogen in reactivity series cannot displace hydrogen gas when reacted with acids। जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, दे कैनॉट डिस्प्लेस, दे कैनॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसलिए जब मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि Cu प्लस H2SO4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने बोला सर CuSO4 प्लस H2। ठीक है, Cu प्लस H2SO4 गिव राइज टू CuSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन गलत होगी। इसलिए गलत होगी
क्योंकि आप कॉपर को रिएक्ट कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड से और बना रहे हो हाइड्रोजन. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it cannot displace hydrogen from sulfuric acid. Copper being less reactive than hydrogen cannot displace hydrogen from sulfuric acid. So this reaction though seems to be correct, but this is actually not correct. ठीक है. अब the metals which occupy positions above hydrogen in reactivity series, they can release water, hydrogen gas from water also. जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन मेटल्स को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. थर्ड इंपॉर्टेंट application of reactivity series is the metals which occupy upper position can displace the metal which occupy lower position from the aqueous solution of low reactive metal, that is lower metal. Understood? पहला क्या है इसका, जो अपर मेटल है वो नीचे वाले मेटल को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है. दूसरा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं. जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं. जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना एसिड के साथ ना वाटर के साथ. So these are some of the application of reactivity series of metals. So it's 4:41. Some common examples of displacement reaction we'll study in the next class. टेस्ट Next class. No test. सर आप ऐसी कोई लिंक भेज के देखो ना, आप खुल रहा है कि नहीं हमारा. मेरे पास कोई लिंक Yes, नहीं है अभी. सर मेरे पास अभी सर कोई लिंक कल नहीं है. वाली सेंड कर दीजिए. मैं दूसरे Yes, सिस्टम में sir. बैठा हूँ अभी. कल दूसरे सर? सिस्टम में सर था, अभी तो दूसरे ट्राई सिस्टम में. तो करना पड़ेगा ना सर, नहीं खुलेगा तो. सर फिर अकेले का नहीं खुलेगा तो क्या होगा सर? तो उसका 0 नंबर अब आएगा. पीरियोडिक टेस्ट में भी इसी